Good morning, class. Today we will continue our chapter 4. Chapter 4 is adaptation in animals. In our previous class, we have studied about some terms like habitat, adaptation, and according to habitat, how animals are classified, such as terrestrial or land animals. We have studied already aquatic animals and amphibians. And now today we will start from aerial animals. Let's start our class. Yes, aerial animals, animals that can fly and spend most of their time in air are called aerial animals. Aerial, as name indicates, aerial means air. Air means animals that can fly and they spend most of their time in air. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो एयर में रहते हैं. दे कैन फ्लाई, दे आर कॉल्ड द एरियल एनिमल्स. तो व्हाट आर द अडेप्टेशन इन सच एनिमल्स? Adaptations are such animals have hollow bones. They have the hollow bones and wings to fly. They have wings. All animals, aerial animals have wings to fly, right? And their bones are hollow with filled air. इनकी जो होलो बोन्स होती हैं उनमें एयर फिल्ड होती है जिससे वो बहुत लाइट इन वेट. दिस मेक दैम लाइट इन वेट. उनकी वजह से वो लाइट इन वेट हो जाते हैं. सो दे कैन ईजिली फ्लाई, राइट. दे ऑल्सो हैव बोट शेप बॉडी विच हेल्प दैम इन फ्लाइंग. बोट शेप बॉडी होती है इनकी, आगे से ऐसी एंड पीछे से भी, लाइक अ टेल होती है पीछे. तो इनकी बोट शेप बॉडी होती है विच हेल्प दैम इन फ्लाइंग एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर इन सर्च ऑफ फूड. एयर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ये, राइट. तो स्पेशल फीचर्स क्या है? दे हैव होलो बोन्स, विंग्स टू फ्लाई, बोट शेप बॉडी, राइट. क्लियर ऑल द अडेप्टेशन और ऑल द स्पेशल फीचर्स ऑफ द एरियल एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज arboreal animals. Arboreal animals, animals that spend most of their time on trees. They live on trees and spend most of their time on trees are called arboreal animals. Perching birds, monkey, ape, koala bear and flying squirrel are some arboreal animals. Perching birds have different types of claws to hold the branches of tree. You know some birds like ये फ्लाइंग स्क्विरल हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं वो ब्रांच को होल्ड करते हैं, यानी कि वो पूरी नाइट भी अपने ब्रांचेस को होल्ड करके वहाँ पर रहते हैं और वो पेड़ से गिरते नहीं हैं, राइट. मंकीज हैव लॉन्ग आर्म्स एंड टेल फॉर क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग ऑन ट्रीज. मंकीज की लॉन्ग टेल होती है, टेल हेल्प करती है उनको क्लाइंब करने में, हैंग करने में. ट्रीज पर हैंग भी हो जाते हैं अपनी टेल से. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अडेप्टेशन टू फूड हैबिट्स. अभी हमने अडेप्टेशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, उनका लिविंग एरिया कैसा, उनकी सराउंडिंग्स कैसे, वो कहाँ रहते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव स्टडीड द अडेप्टेशन. नाउ अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स. व्हाट आर दे ईट, कैसा खाना खाते हैं वो लोग, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट दे कंज्यूम एनिमल्स. एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. व्हाट दे कंज्यूम, वो क्या खाते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट एनिमल्स ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. प्लांट ईटर्स, animals that eat only plants and the parts of the plants. They are herbivores, plant eating animals. They have sharp cutting front teeth. Why they have sharp cutting front teeth? Because they have to cut the plant parts or leaves. क्योंकि उनको फ्रंट टीथ जो होते हैं वही शार्प चाहिए क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं, राइट. वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स तो नहीं है ना, इसलिए उनको शार्प फ्रंट टीथ जरूरी हैं.
and strong grinding teeth for chewing. जब उन्होंने कटिंग कर ली उसके बाद उनको च्यूइंग के लिए उनको ग्राइंडिंग टीथ, जो कि हमारे बैक में प्रेजेंट होते हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट द टीथ. तो ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक एंड फ्रंट टीथ in scissors. Okay, many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. आपने देखा है ये hard hooves because they have to walk a lot in search of food. Cows, goats, giraffe are herbivores. They are the some examples of herbivores and the pictures. Plant eating animals, herbivores. Now carnivores. Carnivores are flesh eating animals. They eat only flesh. They have sharp teeth or beaks or claws to catch their animals, to tear flesh. So carnivores have sharp teeth or beaks and claws because they have to catch their prey एंड टू टीयर फ्लैश. वो अपने प्रे को कैच करते हैं. कैच करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग क्लॉज चाहिए, शार्प टीथ चाहिए उनको टीयर करने के लिए फ्लैश को. दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. तो जो इनके शार्प टीथ होते हैं यानी कि कैनाइंस यूज़ होते हैं हमारे टीयर करने के लिए. वो कैनाइंस हमारे हर्बीवोर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. राइट. तो दे हैव कैनाइंस, शार्प टीथ. Birds of prey like vulture or eagles have sharp eyes to spot their prey. आपने देखा है birds like vulture and eagles वो बहुत एक हाइट से अपने prey को देख लेते हैं. तो they have sharp eyes to spot their prey. Eagles, lion, tigers are carnivores. Now understood कि इनके claws भी बहुत sharp होते हैं, strong होते हैं and they have sharp teeth और beaks. अगर हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो दे हैव शार्प बीक्स, राइट, एंड दे हैव शार्प आईज. दीज आर द फीचर्स ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स. नाउ omnivores. Omnivores are those who eat both plant as well as flesh of other animals. Some animals like vulture, hawk and hyena eat flesh of dead animals. They are the scavengers. यहाँ पर इन्होंने scavengers का बताया. omnivores नीचे है. scavengers होते हैं जो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स है. लाइक लॉयन ने एक एनिमल्स को कैच किया, उसको खाया, बट उसने कुछ पार्ट छोड़ दिया. राइट. तो वो डेड एनिमल का फ्लैश है, वो कुछ रह गया तो वो वहाँ पे रहेगा. तो उनका स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो ईट करते हैं फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. वो जो मरे हुए एनिमल्स होंगे जिसका फ्लैश वहाँ पड़ा है और उसको कोई नहीं खा रहा है तो वो स्क्वेंजर्स खाते हैं. राइट. तो स्क्वेंजर्स आर द एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. वो खुद से अपने प्रे को कैच नहीं करते हैं. दे ईट डेड एनिमल्स. ओके. तो स्क्वेंजर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. अगर कोई डेड एनिमल्स पड़ा है और वैसे ही एनवायरनमेंट में है तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में हेल्प करते हैं क्योंकि वो उन्हें खा लेंगे तो वहाँ से वो क्लीन हो गया. तो स्क्वेंजर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. राइट स्टूडेंट्स. नाउ omnivores मैंने आपको ऑलरेडी बताया ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. right, like bear, crow, cockroach. They are the omnivores who eat both the plants as well as animals. Now some animals depend on other living animals for food. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. राइट. दे आर कॉल्ड पैरासाइट. They live without or on the bodies
they live within or on the bodies of the other animals. या तो वो विद इन द बॉडी पार्ट्स, या वो किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे, अदरवाइज वो ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, या वो किसी की बॉडी के ऊपर रहेंगे. लाइक मग्स, मॉस्किटोज एंड लीचेस आर एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासाइट्स. दे लिव विद इन और ऑन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स. तो बग्स, मॉस्किटोज इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. मॉस्किटोज हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. I hope you understood very well. So your homework is to revise all the topics. Okay students, thank you.